Praise the Lord, church. Amen. What a privilege to be in God's house this morning. I want you to know that we have an opportunity to join, to partake, to fellowship in the presence of God through this medium of technology. I want you to know that I was just sitting and thinking about Peter and the times of Paul when they was going from house to house, proclaiming and fellowshipping and breaking bread. What an opportunity we have to probably just look at our phones and probably look at our televisions through Facebook or through YouTube and to partake. But I pray that you may realize that even though we are doing this from our phones or from our televisions, it is still a worship that we're giving unto God. So I want you to just think about that for a minute. It's not a YouTube video you're watching. It's not just a time pass that you're doing, but we are getting ready on this Sunday to worship God. So I pray that more than what you're wearing, more than what the posture in which you're sitting, I pray that you may really tell God and tell Jesus at this time that, God, we are really, really here because we want to have fellowship with you. We want to have fellowship. Probably you see the number on Facebook, 10, 20, 50, 100, 150. You're joining in with His saints, with His people to lift up the name of Jesus. Amen. Even though we're doing this virtually, I pray that God's presence will be as real as it would have been if you were in church physically. Amen. So let's prepare our hearts, Father. Lord, we thank you, Jesus, for what you're doing. Lord, we want to be in tune, in sync with what you want to do in our lives, Father. We thank you, Jesus, that we have the technology, we have the resources in our hands to do what we are doing right now, Father. And we pray that we use everything for the magnification and for the glory of the name of Jesus. Amen. परमेश्वर तेरा इंतजार है, हमें तेरे उपस्थिति का इंतजार है, तेरे प्रेम का इंतजार है परमेश्वर। तेरे बिन मेरा जीवन है कहाँ, तेरे बिन मैं जाऊंगा कहाँ, तू ही मेरा दिल का है सरदार, तू ना कभी करता इनकार। तेरे बिन मेरा जीवन है कहाँ, तेरे बिन मैं जाऊंगा कहाँ, तू है मेरा दिल का है सरदार, तू ना कभी करता इनकार। दिल में झांक ले जरा, यीशु तुझे पुकार रहा, अब तो छोड़ के ना जा, कर ले दिल से इकरार, इकरार, इकरार। करूं तुझसे प्यार, तेरा इंतजार है मुझे। ओ प्रिया दिल मेरा, तुझ पे भरोसा है मुझे, तेरे बिन मेरा जीवन है कहाँ,
यीशु तुझे पुकारा, ओ अब तो छोड़ के ना जा, कर ले दिल से इकरार, इकरार, इकरार। क्यों ना परमेश्वर से बोले, करूं तुझसे प्यार, तेरा इंतजार है मुझे, दिया दिल मेरा तुझ पे भरोसा है मुझे। Waiting here for you. Waiting here for you.
believe, Jesus, that in your name there is victory. In your name, Lord, there is deliverance, there is wholeness, there is joy. परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर शक्ति और सामर्थ और आनंद है परमेश्वर आपार. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome.
time and time again, you have proven you mean just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, did you come to pass? Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, yeah. Lord, yeah. Oh, yeah. God from age to age, though the prayer may pass away, your prayer may do the same. Oh, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Oh, the storm may come and the wind may blow, I remain steadfast and let my heart play when you speak a word, did you come to pass?
जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरे प्रभु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरे प्रभु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरे प्रभु तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरे प्रभु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यस लॉर्ड सजदा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं क्यों नहीं कोई बार हम परमेश्वर को सजदा करके बोलेंगे सजदा करूं 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 जैसे हम इस गाने को गाते दोहराते जाते क्यों ना परमेश्वर को अपने दिल की सजदा करें क्यों ना परमेश्वर को हमारे let's humble ourselves as we worship him not just with our lips but with our hearts with our spirits. If there's anything that is asking or which is leading you away from the presence of God, this is your time. ये आपका समय है जब आप परमेश्वर से बोले परमेश्वर मैं सजदा करता हूँ परमेश्वर Father, we bow down, Jesus, before you. परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम विनम्र होते हैं परमेश्वर. Lord, as that song says that we are standing on holy ground. Lord, because where you are, like God told Moses, this ground that you are standing, the minute that I enter this ground, the minute that I enter the atmosphere of the place that you are standing in, where you are, no matter what has happened there before, but it becomes holy ground. So take off your sandals, because the ground that you're standing is in holy ground. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हम जैसे तेरी हम सजदा को हम उठाते हैं परमेश्वर. पृथ्वी से स्वर्ग की ओर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को तू जांच, तू हमारे दिलों को तू शुद्ध कर परमेश्वर, तू हमारे दिलों को परमेश्वर परिपूर्णता से भर परमेश्वर. Fill us with your presence, fill us with your joy, fill us, purify us, cleanse us, Lord Jesus. As we come to you, we come prostrate, Lord Jesus. As Revelation says that kings will throw their crowns at the feet of the Lamb of God and say, holy, holy, holy. Lord, we want to make sure that we throw down, we put down every
everything that is separating us, which is deviating our lives from experiencing the power and the purest presence of God. We want to be close to you, Jesus. We want to know you more. I pray that as we worship Him, as we lift up His name, जैसे हम उसकी आराधना करते हैं, जैसे हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर इस जगह पे है. God is in this place. God bless you all and have a wonderful service ahead. I hope you enjoyed the worship service today. I hope you enjoyed the praise and worship. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने आज की आराधना में आपने परमेश्वर की उपस्थिति को आपने महसूस किया. At this time, we want to welcome you this Sunday morning. हम आपका निमंत्रण करना चाहते हैं. अगर आप हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में पहली बार आ रहे हैं, if you're coming to this online service for the very first time, we would love for you to just type in your name and we would love to get in touch with you. We have a team that's watching the comments that are coming in, and we will love to get in touch with you, and we would love to pray for you, and we want to let you know that we're so glad that you have been a part of this online service. अगर आप पहली बार हमारी कलीसिया में इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अगर आप आ रहे हैं, कृपया करके अपना नाम कमेंट कीजिए. हमारे पास यहाँ पे एक टीम है जो आपके साथ संपर्क करेगी और वो आपसे संपर्क में रहेगी, और आपके लिए अगर प्रार्थना कोई विषय है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं. I hope that you're feeling and experiencing God's power and presence in your life. At this time, we want to let you know that God is healing our land. परमेश्वर हमारे इस देश को, दिल्ली शहर को परमेश्वर चंगाई से तृप्त करने वाला है. Amen. God is going to heal our land, and we are praying for this coronavirus to go back in the name of Jesus. And we're praying that no more lives may be lost, no more families be destroyed, but let this time change and become a time of restoration, a time of renewal in our minds. और मेरा और आपका एक कर्तव्य इस समय में यही है कि यही वो समय है मेरे प्रिय भाई और बहन, कि हम परमेश्वर पे विश्वास अटूट और दृढ़ करें. Amen. And God is going to richly bless you. And I want you to know that it's time now to give unto God. And it is a privilege for us to give. I want you to know that God is going to bless you and richly reward you for the faithfulness of your heart. I want you to know that giving is not just a physical act, but it is an act of our heart, telling God that God, you reign supreme over everything in our lives. तो आज मैं आपको मैं उत्साह करना चाहता हूँ और आपको संबोधित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके देने को वो देखते हैं. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कितने पैसे डाले. उसी प्रकार it's not for a church, it's not for a pastor, but it's you, whatever you give, it's for God. परमेश्वर के लिए आप दे रहे हैं, तो क्यों ना हम तैयार हो जाए परमेश्वर के लिए दान देने के लिए. आप ऑनलाइन दे सकते हैं, आप गूगल पे के थ्रू दे सकते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है और बैंक अकाउंट डिटेल्स आप उसके द्वारा दे सकते हैं. लेट्स प्रे एंड बिलीव गॉड फॉर अ मिरेकल. Father, we thank you for this wonderful time. We thank you, Lord, for everyone who has decided to give. We thank you, Lord, that you are doing a great work in our church. You are doing a great work in our nation. And we pray the sower, the seed, the giver, everyone, will let them be blessed in the name of Jesus. And I pray that you will bountifully reward the people who are giving sacrificially in this time of need. परमेश्वर, बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, उसके बीच में भी वो आपके भवन में वो दे रहे हैं. परमेश्वर, आपके भवन में वो बीज बो रहे हैं. परमेश्वर, उनको बहुत आयत से आप आशीष दीजिए. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now we are here at the most important time of today's service. We are getting ready to hear the word of God from none other than our senior pastor, Reverend R. Abraham. Why don't we welcome him as he comes forward and gives you the word that is going to sustain you and keep you. परमेश्वर के दास रेवरेंड आर एब्राहम को हम क्यों ना हम निमंत्रण दें, और परमेश्वर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदलने वाला है. लेट्स वेलकम पास्टर आर एब्राहम.
I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. और आज सुबह के समय आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। What a joy it is for us to come together to worship our living Savior. और कितना ही आनंद की बात है कि हम हमारे जिंदा परमेश्वर की आराधना के लिए जमा हो पाए हैं। Capital Christian Center, a wonderful family of God. और जो कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर एक कलीसिया बहुत ही अद्भुत परिवार है परमेश्वर का। Only problem I have is I'm not able to see your faces, but I hope that you are all there in your homes joining us in this worship service. और सिर्फ एक ही समस्या है कि मैं आपके चेहरे को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन यह मेरा विश्वास है कि आप हमारे साथ आराधना में बने हुए हैं। Amen. आमीन। God has been so good to us in the last 1 week. और परमेश्वर हमारे साथ पूरे सप्ताह जो गया हुआ है उसमें भला रहा है। God was taking care of us. परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा था। He was providing for every one of us. वो हम सबके जो भी चीज की जरूरत है उसको पर्याप्त करा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Well, as I'm standing before you, that I want to share with you, Pastor Feroz is struggling in a very serious condition. और जैसे मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पास्टर फिरोज अंकल हैं उनकी जो हालत है वो बहुत ही और नाजुक होती जा रही है। I don't need to tell you to pray for him. I believe that all of you are praying for God's miraculous healing. और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे को ये बताना पड़ेगा कि आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष उन पे आएगी। Because I believe that only God can heal him. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकते हैं। You are struggling for your life. That's what he is doing. और वो अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, जो वो करते आ रहे हैं। Almost 1 month has passed by. और पूरा लगभग 1 महीना बीत चुका है। We were fortunate to get a bed in the Safdarjung Hospital. और ये हमारे सौभाग्य की बात रही कि हमें वो बेड मिल गया सफदरजंग हॉस्पिटल में। I still can't believe what would have happened to us if we were not able to get that bed. और मैं सोचता हूं अगर हमें वो बेड नहीं मिल पाता तो हमारे साथ क्या हो जाता। But God was gracious. लेकिन परमेश्वर हम पे दया बना के रखा हुआ He है। was in the intensive care. और वो ICU में थे। And then he was slowly improving. और उसके बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आया। I thought that he has beat the seriousness of the sickness and disease and he is going to come out. और मुझे ऐसा लगा जब ऐसा चल रहा था कि वो उसको हरा देंगे और उस सब बीमारी को चीरते हुए वो ऊपर उठ के आएंगे। About 5 days ago, his condition became deteriorating and serious. So they have to take him and put him back in the ventilator. और 5 दिन पहले उनकी जो हालत और बिगड़ गई और वापस उन्हें वेंटिलेटर पे ले जाया जाना पड़ा। So please pray for him. और इसलिए आपसे विनती है कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। I have known him, as you know. I brought him up as a young man in my house. और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उनको एक नौजवान के समय से जानता हूँ और उनको मैंने अपने घर में देखभाल की है। He was very much like my family. और वो बहुत ही मेरे परिवार के एक हिस्सा हैं। He lived in my home. वो मेरे घर में रहा करते थे। He did his studies from my house. और मेरे घर से वो पढ़ाई किया करते थे। And I conducted the marriage for him with Omila. और ओमिला आंटी के साथ हजरी अंकल का जो शादी वो मेरे द्वारा गठित की गई थी। He traveled to various countries and then he came back and to be with us in the last 3-4 years. और 3-4 साल पहले वो सारी दुनिया में काम की वजह से इधर उधर बहुत काम करते रहे और उसके बाद वो वापस आकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। I pray with all my heart, God, give him a long life. Give him back to us, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे फिरोज अंकल को बहुत सालों के लिए आप उनकी उम्र बढ़ा दीजिए। यही हमारी प्रार्थना है आपसे। Amen. आमीन। The prayer of the righteous will avail much. That's what the Bible says. और वचन कहता है जैसे धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। And all of us are praying. और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। Friends from all over the world are praying for his healing. और जो दोस्त
लोग हैं उनकी चंगाई के लिए दुनिया के चारों तरफ से प्रार्थना कर रहे I हैं। believe the Lord will hear our prayers. और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। I hope that I'll have some good news for you. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छी खबर जल्दी हम पहुंचाएंगे, Because God's hand is upon us. क्योंकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Well, we all gave for God's work, our offering, our tithes. Thank you so much. और हम लगातार परमेश्वर को भेंट और हमारा जो बलिदान के रूप में जो भी छोटा मोटा है हम चढ़ाते आ रहे हैं, And God will richly bless you. और परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष दे। The work of the Lord should continue on. और परमेश्वर का जो काम है वो लगातार चलना चाहिए। And it is a plan of God. The tithes and offerings are a plan of God. और परमेश्वर की योजना में ये दोनों बातें आते हैं कि हमें टाइट देना है और भेंट चढ़ाना है। Because God says in Malachi, so that there will be food in my house. और वो कहता है वचन में मलाकी की पुस्तक में कहता है कि घर में बहुत सा खाने का अनाज होगा। Amen. आमीन। Our giving is going to bless the house of God. और जब हम देंगे हमारा देना बलिदान के रूप में, चाहे वो भेंट है या दशवांश है, वो सब परमेश्वर के भवन में खाने की बात को बढ़ाएगा। And of course, God will account that upon you. And God will reward you. और जो आपने किया है परमेश्वर उसको देखते हुए आपको और आशीषित करेगा। And of course, the windows of heaven will open for you and for me. और हालांकि और इसके बावजूद और जो स्वर्ग के झरोखे हैं वो भी आपके लिए और मेरे लिए खुल जाएंगे, And God's hand will be upon और us. परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहेगा। I want to share with you a message that God has put in my heart for और एक you. वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है। A man after God's own heart. और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के दिल के बहुत ही करीब है। That is what we all would like to hear from God. और यही जो वाक्य है ये हम सब लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं That's परमेश्वर what I से। believe we desire in our hearts. और यही मैं विश्वास करता हूं कि यही हमारी प्राथमिक इच्छा है हर एक के दिल में। I want to be a man after the heart of God. और मैं परमेश्वर के दिल के बहुत करीब जाने वाला एक व्यक्ति बनना चाहता I हूं। want to be a woman after the heart of God. और मैं एक ऐसी स्त्री कहलवाना चाहती हूं कि जो परमेश्वर के दिल के करीब है। That should be the desire of our heart. और वो हमारे दिल की एक तमन्ना होनी चाहिए। And today my message will be how can we become a man or a woman after the heart of God. और आज मेरी जो बात है या विचार है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि हम कैसे परमेश्वर के सामने एक स्त्री और पुरुष बन सकते हैं जो उसके दिल के करीब जाने जाएंगे। Let us read from 1 Samuel chapter 13. और आइए हम पुराने नियम से पहले सैमुएल की पुस्तक 13वें अध्याय से पढ़ेंगे We're going to read verse 14. और हम 14वीं आयत से पढ़ेंगे। And we read like this. हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते This हैं। is Samuel talking to King Saul. और ये जो सामुएल है वो शाऊल राजा से बात कर रहा है, Because King Saul disobeyed God. क्योंकि जो शाऊल राजा है वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। But God's heart was saddened because of the behavior of Saul. और जो शाऊल का जो व्यवहार था परमेश्वर के आंखों में बहुत ही खटकने लगा। Let us read this verse. और आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं। And Samuel says, और सैमुएल ने कहा, it is in verse 14, chapter 13, 1 Samuel. और यहाँ पे पहला शामिल उसके 13वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, But now your kingdom shall not continue, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, because the Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be the commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। The same God who gave the kingdom into the hand of Saul, और ये वही परमेश्वर है जिसने पूरा साम्राज्य शाऊल के हाथों में सौंप दिया था, because of his disobedience to God. और उसकी अनाज्ञाकारिता के वजह से Two things. और दो बातें। Number one, he sacrificed
before going to the war, instead of waiting for Samuel. पहली बात वो थी कि एक युद्ध में जाने से पहले उसने शाऊल का इंतजार नहीं किया और बलिदान चढ़ा दिया। Saul was not authorized to sacrifice for God. और शाऊल को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। But he did because he said Samuel was getting late. और उसने ये कर दिया और उसने कहा क्योंकि सैमुएल बहुत लेट हो चुका है। Saul should always remember that God is never late. और शाऊल को यह बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ करके रखना था कि परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता है। Samuel, the man of God, knows what time to arrive. और सैमुएल जो परमेश्वर का दास था उसे पता था कि कौन से समय में आना है। Nothing is going to go wrong. और कुछ भी गलत नहीं घटेगा। But Saul was thinking in his own ways. लेकिन जो शाऊल था वो अपने तरीके से सोच रहा था। Amen. आमीन। And God was annoyed with what Saul did at that day. और उस दिन जो शाऊल ने किया वो परमेश्वर की आंखों में परमेश्वर को अखर गया। And the second one was he went to fight against Amalekites. और दूसरी बात है जब वो अमलकाइत से लड़ने के लिए जाता है। And God said to him through Samuel, you will destroy everything in that country. और सैमुएल के द्वारा उसे यह आज्ञा दी थी कि जब तू उस देश में जाएगा उसकी सारी चीजों को तू नष्ट कर देगा। Men and women and children and all the cattle, camels, everything. और वहां पे जो भी है स्त्री पुरुष नौजवान बच्चे और लड़के लड़कियां और जो जीव जंतु हैं सब लोगों को। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? He saw these wonderful sheep and oxen, so good and so fat, and he said, let's take some to our place. और वो सब भेड़ बकरियों को और अच्छे गाय बैलों को देखता है जो अपने आप में बहुत मोटे हैं तंदुरुस्त हैं और उनको देख करके कहता आइए हम इनको अपने घर लेकर के चलते हैं। And Samuel came. और सैमुएल आ पहुंचता है। And he said, did you do exactly what God told you? तो सैमुएल उससे प्रश्न करता है क्या शाऊल तूने वही किया जो परमेश्वर ने तुझसे करने के लिए कहा था? And he said, yes. और शाऊल कहता है हाँ। And Samuel says, what is this noise? The bleating noise of sheep and oxen. और तब वो आवाज सुन करके शाऊल से पूछता है कि शाऊल ये आवाज क्या है जो मैं सुन रहा हूं? Amen. आमीन। Saul disobeyed God. और शाऊल परमेश्वर के आज्ञा के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाता How है। much did his disobedience cost him? और कितना उसकी अनाज्ञाकारिता ने उसको चोट पहुंचाई है। It says here, your kingdom shall not continue. और इधर कहा जाता है 14वीं आयत में तेरा जो राज्य है तुझसे छीन लिया जाएगा। That is too much of a price to pay. और ये बहुत ही अपने आप में बड़ा दाम है चुकाने My वाला। dear friends, you and I should know और- the cost of disobedience is too high. और आपको और मुझको ये जान लेने की जरूरत है मेरे मित्रों कि हम अनाज्ञाकारिता का हमें बहुत बड़ा जो पैमाने पे चुकाना पड़ेगा। Your kingdom is taken away from you. और आपका जो राज्य है आपसे छीन लिया जाएगा। Saul is crying. और शाऊल यहाँ पे रो रहा है। Saul is begging, saying, no, I didn't do that much. और शाऊल कहता है नहीं जितना आप मेरे को कह रहे हैं उससे ज्यादा मैंने नहीं किया है। But disobedience is worse than witchcraft. और ये जो अनाज्ञाकारिता है ये जो काला जादू करने से खतरनाक होता है। Obedience is better than sacrifice. और बलिदान चढ़ाने से बेहतर है आज्ञाकारिता। And Samuel says, और सामुएल कहता है the Lord has sought for himself a man after his own heart. और शाऊल को वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो उसके दिल के बहुत ही करीब है। Amen. आमीन। Saul was chosen by God. और जो शाऊल था वो भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया The था। first king of Israel. और इस्राएल जो बहुत बड़ी प्रजा है उसका पहला राजा था। Taller than anyone in the whole clan of Israel. और इस्राएल के पूरे गोत्र में वो सबसे लंबा चौड़ा एक आदमी था। He was above और the shoulders of everyone. और वो सबके ये जो शोल्डर है उससे भी ऊंचा दिखाई पड़ता है। A very handsome man. और अपने आप में बहुत ही सुंदर है। It was God's choice. और वो परमेश्वर की योजना थी। God was hoping that he will be
good for him and he'll be obedient to him. और परमेश्वर को ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में वो परमेश्वर के लिए एक अच्छा फल लेके आएगा और उसकी आज्ञा को मानेगा। But of course it was not so. लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। Now in verse 14 Samuel says, और 14वीं आयत में सामुएल कहता है, your kingdom will not continue. और आपका जो राज्य है वो हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, It is coming to an end. और वो अंत आज पहुंचा है। You are not going to be the king और forever. अब तुम हमेशा के लिए राजा नहीं बने रह सकते Your हो, throne is taken away from you. और जो आपका सिंहासन है वो आपसे छीन लिया जा रहा है। Why? क्यों? Because God has chosen someone, a man after his own heart. क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ करके एक दूसरे नौजवान को चुन लिया है जो उसके दिल के करीब है, It was David, और वो दाऊद था। the shepherd boy. और दाऊद जो एक भेड़ चराने वाला था, Hallelujah. हालेलुया, In the place of Saul, और जो शाऊल की जगह पे God has chosen a shepherd boy to become the king of Israel. परमेश्वर ने एक चरवाहे को चुन लिया कि वो इस्राएल की प्रजा को आगे जाकर के अगुवाई कर सके। God, why couldn't you find somebody else? परमेश्वर आप दूसरे को क्यों नहीं ढूंढ पाए? A soldier. और एक सैनिक, Oh, a strong man. और बहुत ही बलवंत आदमी को, An educated man. और एक पढ़े लिखे आदमी को। In the words of his father, it says he is no good. और अपने उसके दाऊद के पिता के शब्दों के अनुसार अगर ऐसा कहा जाता है, दाऊद कुछ भी नहीं है। When Samuel went to anoint David as a king, और जब जो शाऊल है वो दाऊद को अभिषेक करने के लिए जाता है, सैमुएल, amen. आमीन, When he went there, और जब सैमुएल वहां पर जाता है, the father Jesse was parading his boys, his older sons, who are very good in life. और जो दाऊद का जो पिता है जैसी, वो एक एक करके बड़े बेटे को, उससे छोटे बेटे को, उससे छोटे बेटे को सामने रखते जा रहा है सामुएल के। And God says, और परमेश्वर कहता है, because Samuel felt when he saw these older brothers, they looked to be suitable to become the king. और जैसे ही सैमुएल की नजर उसके बड़े भाई पे पड़ती है, उसके देखने में जो सैमुएल के दिल को वो भा जाता है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, no, wait. नहीं, रुक जाओ, There's a problem. और एक समस्या है। Man looks at outside of the people, और जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो बाहरी रूप देखता है, but God searches the heart of people. लेकिन परमेश्वर जो है वो एक इंसान के हृदय के भीतर की बातों को जांचता है। That is a qualification of David. और वो है दाऊद की एक अच्छी खूबी। God says, परमेश्वर कहता है, I have chosen a man after my own heart. मैंने एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। Amen. आमीन। Now the question is this. लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, How did David become the man after the heart of God? लेकिन अब ये है कि कैसे दाऊद परमेश्वर के दिल के बहुत करीब वाला व्यक्ति बन पाया। Let me begin where Saul failed. और मुझे शुरू करने दीजिए जहां पे शाऊल असफल हो जाता है। Why Saul lost the kingship? और क्यों जो शाऊल है अपने राजा का जो सिंहासन है वो खो देता है? Why God rejected him? क्यों परमेश्वर उसका तिरस्कार करता है? It is because of his disobedience. क्योंकि वो उसकी अनाज्ञाकारिता के वजह से है। Amen. आमीन। What about David? और दाऊद के बारे में क्या है? David was an obedient child of God. और जो दाऊद है वो परमेश्वर का एक आज्ञाकारी पुत्र है। All through his life, और अपने पूरे जीवन में he was obedient to the voice of वो God. परमेश्वर की आज्ञा और उसकी वाणी के प्रति वो बिल्कुल आज्ञाकारी बना रहा। He listened to his voice. और वो परमेश्वर की वाणी को सुनता रहा। He did exactly what God wanted him to और वो do. वही करता रहा जो परमेश्वर उससे चाहता था। How do you become the man after the heart of God? और कैसे आप एक पुरुष बन सकते हैं परमेश्वर के दिल के करीब वाले? Number one, through your obedience.
पहला जो है आपकी आज्ञाकारिता के अनुसार, You must be willing to obey God no matter what. और चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये सोचना है, प्रण लेना है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। You should trust God with all your life. अपने पूरे संपूर्ण जीवन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। Hallelujah. हालेलुया। He was an obedient child of God. और वो परमेश्वर का एक आज्ञाकारिता वाला एक बेटा था। Number 2, दूसरी बात, David was a worshipper. और जो दाऊद था वो एक आराधक था। Worship is a very important thing for God. और आराधना एक परमेश्वर के लिए बहुत ही अहम पहलू है। No matter what you know, what you do, what you have does not matter. और इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, क्या है, और आपके पास कहां से आते हो। God wants you to be a worshipper. परमेश्वर चाहता है कि आप एक आराधक बन जाएं। You remember when Jesus talked to the woman at the well in Samaria? आपको पता है वो सामरी जगह पे परमेश्वर उस सामरी स्त्री से बात करता है। You know what he said? आपको पता है परमेश्वर क्या कहता The है? Father is looking for worshippers. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता एक सच्चे आराधक लोगों को ढूंढ रहे हैं। Remember that, my dear और friends. मेरे प्रिय मित्रों, इस कथन को ध्यान से याद रखिए। He is not looking for anything else from your life. और वो आपके जीवन से कोई भी चीजों को नहीं चाहता He है, is looking for worshippers. और वो आराधक को मांग करता है। I believe the very purpose of God creating man, और परमेश्वर का जो एकमात्र खास मकसद है एक जीवन को जानना या उसको पैदा करना, the creation of Adam and Eve, और जो परमेश्वर के द्वारा आदम और हव्वा को रचा जाना, God coming in the cool of the day every day into the Garden of Eden. और दिन के और जो शाम के समय, ठंडे समय में परमेश्वर हमेशा आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता है। What was this relationship? और उनके साथ क्या एक रिश्ता था। Why did God do that? और परमेश्वर ने क्यों वो किया था? Because God was enjoying the worship of Adam and Eve. क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा के बीच में जो आराधना चल रही थी उसका लुत्फ उठा रहा था। Amen. आमीन। All the psalms that David has written, और सारे के सारे जो संगीत जो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं, sitting there all alone in the jungle, और जंगल में अकेला अपने आप बैठा हुआ है, looking after the sheep of his father. और अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करते हुए, He is not upset because he is rejected in the family. और वो इस कारण से अपने परिवार में उसे त्याग दिया गया है, परेशान नहीं है। In Psalm 27 he says like और this, भजन संहिता 27 में वो इस प्रकार कहता My है, father and my mother has forsaken मेरे me, माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, but my God will uphold me. लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा के रखेगा। Amen. आमीन। He was not sad. और वो बिल्कुल दुखी नहीं था, He was not upset. और वो बिल्कुल दुख में नहीं था, Because he has found a relationship with an amazing God. क्योंकि उसने एक अच्छा रिश्ता अपने जीते जागते परमेश्वर के साथ ढूंढ लिया था, He was connected with his God. और वो अपने परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहता He था, enjoyed the presence of और वो God. परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ उठाता था, He will take his harp and start singing और वो- and worshiping और वो God. अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के गीत गाया करता था, The heaven declare the glory of God. और जो स्वर्ग है वो परमेश्वर की महिमा बताते The हैं, voice of God और परमेश्वर की जो आवाज, is does so many things for us. और उसने हमारे जीवन में कई बड़े बड़े कार्य किए हैं, Keep on worshiping और God. उसकी आराधना करते The रहिए, time passed by every day. और हर दिन ऐसा समय बीतता गया, Because when you really worship God, और जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं time does not matter. और समय का फर्क नहीं पड़ता It is है, not the 3 songs. और वो तीन संगीत नहीं It लिखे, is not just the 5 songs. और ये सिर्फ 5 गीतों का मतलब नहीं It is है, not you looking at the watch. और ऐसा नहीं होता कि आप अपनी घड़ी को देख रहे हैं, Worship is timeless. और जो आराधना है वो असीमित है, Oh, it will take you far beyond the time. और वो आपको अपने समय से बिल्कुल परे लेकर के जाएगी। Are you a true worshipper? क्या आप सच्चे आराधक हैं? That Jesus was saying, क्या जैसे यीशु मसीह कह रहा था, the Father is searching for और worshipers. मेरा स्वर्गीय पिता एक सच्चे आराधक लोगों को ढूंढ रहा है, You are sitting at home most of the और time. ज्यादातर आप अपने घर में बैठे हुए Do हैं। you worship God these days? क्या इन दिनों में या जैसा समय बहुत जटिल है आप परमेश्वर की आराधना करते Do हैं? you sing unto the Lord? क्या आप परमेश्वर के लिए संगीत गाते Do हैं? you lift up your hands towards
towards heaven? क्या आप अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं स्वर्ग की ओर? Amen. आमीन। David was a great worshipper. और दाऊद एक बहुत बड़ा आराधक था। Amen. आमीन। Number 3, तीसरी बात, his total trust in the Lord. और उसका संपूर्ण विश्वास यहोवा पर। Amen. He trusted God with all his heart. आमीन। उसने अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखा You था। remember the time he went to fight against Goliath? और आपको पता है वो समय जब वो पूरे अपनी ताकत के साथ गोलियात से लड़ने के लिए गया था, When everybody was frightened, जब सारे लोग डर गए थे King Saul was hiding inside his और tent. जो शाऊल राजा है वो अपने टेंट में डर के घुसा हुआ है, David's 3 older brothers are petrified. और जो दाऊद के 3 बड़े बड़े भाई हैं वो चिल्ला रहे हैं, Everybody was hiding और सब लोग अपने आप में दुबक करके बैठ गए हैं because he was too big. क्योंकि वो बहुत बड़ा है अपने आप में। Goliath is 10 feet tall. और गोलियात है जो वो 10, उसकी लंबाई बहुत 10 के अनुसार है, He is too strong. और वो बहुत ही मजबूत है, His spear is so big. और उसका जो भाला है वो बहुत ही नुकीला है। Amen. आमीन। That's why everybody is frightened. इसलिए सब लोग डर गए। And here comes the shepherd boy. और यहाँ पे आप देखो कि एक चरवाहा जो लड़का है वो आता है, He goes to the king and says, I will fight him. और वो राजा के पास जाकर के कहता है कि मैं लड़ूंगा। How can he do और it? कैसे कर सकता है वो? Because my God is with me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, I have great testimony in my life. और मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां One हैं। time a lion came. और एक बार शेर आ जाता है I tore it into pieces. और मैंने उसको टुकड़ों में बांट दिया, A bear came. और एक दिन भालू आ जाता है I killed that. और मैंने उसको मार डाला। How? कैसे? Because I do not trust in my strength, क्योंकि मैं अपनी ताकत पे विश्वास नहीं करता हूँ, but I trust in my God. लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What did he say to the giant? उसने उस बड़े दानव को क्या कहा? He said like this उसने इस प्रकार कहा, in verse 45, और 45वीं आयत में chapter 17. और 17वें अध्याय की 45वीं आयत में लिखा है, And David said to the और Philistine, तब दाऊद फिलिस्तियों को कहता है, you come to me with a sword, और तू अपने भाले के साथ आता है, with spear and with a javelin, और अपने भाले और ढाल के साथ तू मेरे साथ आता है, but I come to you in the name of the Lord of hosts, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता the हूँ, God of the armies of Israel. जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है। Amen. आमीन। He trusted in a God who is bigger than Goliath. और वो ऐसे परमेश्वर पे विश्वास रखता है दाऊद जो गोलियात से बढ़कर है, He trusted in a God who will lead him and guide him. और वो उस परमेश्वर पे भरोसा रखता है जो उसकी अगुवाई करता है और उसको When बचाएगा। you trust God, और जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, when you are facing Goliath, जब आप गोलियत जैसी परेशानियों का सामना करेंगे, you only need a little stone. और आपको सिर्फ एक छोटे से पत्थर की जरूरत You पड़ेगी, don't need sword. और आपको तलवार की जरूरत नहीं, You don't need the armor. और आपको किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, You only need a little stone. और आपको सिर्फ एक छोटे पत्थर की जरूरत है, Because God will fight for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Number 4. और चौथी बात, David always humbled himself before God. और दाऊद हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र इंसान बना रहा। You remember he was dancing before God और आपको पता है कि जब वो परमेश्वर के सामने नाच रहा था, with all the ordinary people. और एक बहुत सामान्य जो लोग उसके आसपास खड़े थे, And his wife Michael said like this. और उसकी जो पत्नी है मिखाइल वो इस प्रकार से कहती है, And she said, और वो कहती है, oh, it was so nice to see the king dancing with those dancing girls right on the streets. और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में कि एक राजा जो इस जितना बड़ा सेना का जो राजा है वो दूसरे लोगों के सामने नाच रहा है। David said, और दाऊद कहता it है, is nothing. और ये कुछ भी नहीं I will है, do this and more before my और God. मैं ये करूंगा और इससे बढ़ करके करूंगा। My God is so great. मेरा जो परमेश्वर वो बहुत महान है, And my throne and my kingship doesn't matter to me. और मेरा जो राज्य सिंहासन है और जो मेरा राज्य है वो मेरे लिए कोई भी कुछ भी नहीं रखता है। And he humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया। And number 5. और पांचवी बात, That's what I want to finish today. और जिसके साथ मैं समाप्त करना These चाहूंगा, are all good things that I said. और ये बहुत अच्छी बात है जो ये सारी बातें जो मैंने कही हैं But अभी, I saw something more in the life of David
that made him the man after the heart of God. और इन सारी बातों के परे मैंने एक और बात देखी है जो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के करीब वाला व्यक्ति बना देता है। Amen. आमीन। That is, we see in 1 Chronicles chapter 17. और उसको हम पहले न्यायों की इतिहास पहले इतिहास की किताब उसके 17 अध्याय में देखते हैं। 17, we're not reading the whole thing from verse 1 to 15. हम पहली आयत से और 15वीं आयत तक नहीं पढ़ेंगे, But that's where you see the story. लेकिन वहां पे आप उस जो कहानी है उसको देख सकते हैं। And David was sitting and thinking one day. और दाऊद एक दिन बैठा हुआ इस प्रकार से सोच रहा And है, he said that to Nathan the prophet. और तब वो जो नाथान भविष्यवक्ता है वो उसको इस प्रकार कहता है, He says in verse 1 like this. और वो पहली आयत में इस प्रकार कहता है, See, now I dwell in the house of cedar. और अब मैं सीदार के बने हुए चीजों से जो तंबुओं में रहता हूँ, I say in the house. और of मैं cedar. देवदारों के बने हुए घरों में रहता हूँ, But the ark of the covenant of the Lord is still under a tent curtain. परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। Amen. आमीन। And Nathan said, do whatever is in your heart. नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर। This is the 5th point I want to make. और ये 5वां बिंदु है आज के सुसमाचार का जो मैं बताना चाहता हूँ। David wanted to build a house for God. और परमेश्वर यहोवा के लिए जो दाऊद राजा है वो एक बहुत बड़ा घर या मंदिर बनाना चाहता है। Only David thought of building the house. और सिर्फ दाऊद राजा ने ऐसे मन में ठाना कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है। If you'll read that story, as I said, from verse 1 to 15. और जैसे मैंने कहा है 17वें अध्याय की 1 से लेके 15वें पूरी आयतों को आप पढ़ेंगे, God was sending a message through Nathan the prophet. और परमेश्वर नाथान जो भविष्यवक्ता है उसके द्वारा एक समाचार संदेश को भेज रहा है। And God says, और परमेश्वर कहता है, you know, I have not dwelt in a house from the day I started from Egypt. और जिस दिन से मेरी प्रजा ने उस मिस्र देश से चलना शुरू किया था तब से लेकर अभी तक मैं कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं रहा हूँ। I brought the people all the way. और मैं सारे जगहों से उन लोगों को उभार के लेके आया हूँ। But even this day, I am moving from tent to tent. और आज भी मैं एक तंबू से लेकर के दूसरे तंबू में जाता हूँ, One tabernacle to another tabernacle. और एक तंबू के साथ दूसरे तंबू और ऐसे करते हुए जाते हैं। God says, परमेश्वर कहता there है, have been so many judges, और बहुत से न्यायी लोग भी हैं, including King Saul, और साउल को मिलाते हुए भी, whom I used so amazingly. और जिसको मैंने बहुत आय से अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया है। Judges like Gideon, और न्यायियों में जैसे न्यायियों में पाया जाता है गिदयोन, and judges like Samson, और जो सिमसोन है ऐसा एक व्यक्ति, like Deborah, और दिबोरा, like Barak. और बाराक जैसा। God said, I used every one of और them. मैंने इन सब लोगों का इस्तेमाल किया है, And delivered the people of God. और मैंने इन लोगों के द्वारा लोगों को छुड़ाया है। I never asked them to build a और house, मैंने उनसे कभी मांगा नहीं था कि वो मेरे लिए तंबू को बनाए, but none of them wanted to build a house. लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं चाहत रखी कि वो मेरे लिए एक मंदिर को बनाए। And he says, say that to my servant David. और वो कहता है नाथान को कि नाथान जा तू मेरे जो दाऊद है उसको इस प्रकार कहना, Tell him that I picked you up from the sheepfold. और उसको कहना कि मैंने तुझे उस भेड़ों के झुंड से उठाया है, And from following the sheep, I made you the king of Israel. और उस चरवाने वाली जो रीति से मैंने तुझे राजा बना रहा हूँ, And I looked after you. I was with you. और मैं तेरे साथ था और मैं हमेशा तेरे साथ बना रहा। Amen. आमीन। I planted my people. I provided for them. और मैंने अपने लोगों को बिल्कुल बनाया है, उनके लिए सारी चीजों को पर्याप्त भी कराया है, But none of them wanted to build a house for me. और उनमें से किसी ने भी ये नहीं ठाना अपने दिन में कि वो मेरे लिए एक मंदिर को बनाए। But now, लेकिन अब you have chosen to build me a house. क्योंकि तूने ये ठाना है कि तू मेरे लिए एक मंदिर को बनाए, I have accepted your desire. और मैंने तेरी चाहत को अपने दिल में ग्रहण कर लिया है। Only
little change. और सिर्फ अब हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, Because you are a man who has been shedding so much of blood. क्योंकि तू एक ऐसा आदमी है जिसके हाथों के द्वारा बहुत सी जानें गई हैं, You won't be the one building my house. और तू नहीं होगा जो मेरे मंदिर को बनाएगा, But according to your desire, your son will build a house for और me. तेरी इच्छा के अनुसार मैं तेरे बेटे को ऐसा होने दूंगा कि वो मेरे लिए एक मंदिर को बनाएगा, And he will build the house. और वो घर को बनाएगा, And I give you my promise to your family. और मैं अपना वादा तेरे परिवार को देता हूँ, I will bless your seed. मैं तेरे जो वंश हैं उसको आशीषित करूंगा, I will be there establishing my covenant forever with them. और हमेशा हमेशा के लिए मैं अपनी दी गई वाचा को उनके साथ पूरा करूंगा। God gave all the promises to David. और परमेश्वर ने कहे हुए सारे वादे को और वाचा को जो दाऊद से किया था उसे पूरा किया। To me, that is the greatest thing in the life of David that made him a man after the heart of God. और मेरी नज़र में ये जो पांचवी बात है कि परमेश्वर का उसने ये ठाना कि वो एक मंदिर बनाएगा या घर बनाएगा, उस बात को परमेश्वर ने छू लिया, और उस बात के द्वारा ही दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब जाने वाला व्यक्ति बना। Let's make a choice as we finish. और जैसे हम समाप्त करने जा रहे हैं, आइए हम एक चुनाव करें। All the judges and up to Saul came. और सारे न्यायी जो लोग हैं और जो शाऊल राजा है उस तलक, They built their houses. और उन्होंने अपने घरों को बनाया, They built their palaces. उन्होंने अपने राज्य और भवन को बनाया, They built everything for themselves. और उन्होंने अपने लिए सब कुछ बनाया, But they never thought about God. लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के लिए नहीं They सोचा, received all the blessing from God, और उन्होंने परमेश्वर से ढेर सारी आशीषों को तो ले लिया, but they did not give the priority to God. लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता को To नहीं build the दिखाया house of God. ताकि वो परमेश्वर के घर को बना सके। What about you, my dear friend? आपके जीवन में क्या है मेरे God मित्रों? has given everything that you have. परमेश्वर ने जो भी कुछ आज आपके जीवन में है वो सब परमेश्वर के द्वारा दिया गया Your है। job, your money, your children, your family, everything. आपका काम, आपका घर, आपका कार्य, आपके बच्चे, सब कुछ। Where is God in your life? आपके जीवन में परमेश्वर कहाँ है? Is he still in the tent? क्या आज भी वो तंबू में बसता है? Or are you planning to build the best place of your life for God? और क्या आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? David became a man after the heart of God. और जो दाऊद है वो परमेश्वर के हृदय के करीब जाने वाला व्यक्ति बन गए। May God help you and me to desire to become the man after the heart of God. और होने दीजिए कि परमेश्वर में हमारी ये चाहत बन जाए कि हम परमेश्वर के हृदय के करीब जाने वाले इंसान बन जाएं, Give God the best place of your life. और अपने जीवन में सबसे अच्छा स्थान परमेश्वर को दीजिए। Amen. आमीन। And God's promises will be fulfilled in your life. और परमेश्वर के सारे वायदे आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। Heavenly Father, स्वर्ग के पिता, we praise you, Lord, today. और आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। What an amazing character, the life of David. और कितना बहुमूल्य जो बातें हैं दाऊद राजा के जीवन से। Lord, how you have made him the man after your own heart. परमेश्वर कैसे तूने अपने हृदय के करीब वाले पुरुष को बनाया है। Trying to find out, Lord, we are digging in and find out the secret of this position. और परमेश्वर हम इस जगह को पाने के लिए हम बहुत सी बातों की खोजबीन कर रहे हैं। Help us, Lord, to be like David. परमेश्वर हमारी मदद कीजिए कि हम दाऊद राजा जैसे समान बन Let जाएं, God take the best place. और होने दीजिए कि परमेश्वर सबसे ऊंचा स्थान ले Let ले। the house of God will be the best that we will ever build. और सबसे अच्छी बात ये हो जाए हमारे जीवन में कि हमारे द्वारा परमेश्वर का घर बनता रहे। Take care of us, Lord. परमेश्वर हमारा ख्याल रखिए। Protect everyone, Lord. परमेश्वर हम सबको बचा के रखिए। Raise up Hazri from that sickness, Lord. परमेश्वर उस बीमारी से हजरी अंकल को उठा लीजिए। Have mercy upon us. परमेश्वर हम पे अपनी दया को दिखाइए। Take care of the coming week. परमेश्वर आने वाले सप्ताह में हमारा ख्याल रखिए, Let the hand of God will be upon us. और परमेश्वर आपका हाथ हम सब पर बना रहे। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम में हम सब प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore.
Amen. आमीन। Amen. God bless you, my dear friends. और मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Take care of yourself. अपना ख्याल रखिए। Don't forget, you are the family of Capital Christian Center. आप इस बात को ना भूलिए कि आप कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के एक मेम्बरान हैं। Love God with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर यहोवा को प्रेम कीजिए Take care of yourself. और अपना ख्याल रखिए। Protect yourself. अपने आप को बचा के रखिए। COVID is not finished और yet. ये कोविड जो संक्रामक बीमारी है वो भी खत्म नहीं हुई है। God really bless you. परमेश्वर आपको पूरे दिल से आशीष दे। I love you with all my heart. मैं अपने संपूर्ण हृदय से आपको प्रेम करता हूँ I really miss you. और मैं आप सबको बहुत आयत से याद करता हूँ। God's blessings. परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे। Thank you once again for joining our service. आप सभी को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे सर्विस में जुड़े. I want you to know that if you would like to connect with us, if you need prayer, we are here for you. हम आपके साथ हैं. अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, प्रार्थना की ज़रूरत हो, यहाँ पे you can see we have a few numbers flashing. If you want to get in touch with us, please feel free to call us and message us, WhatsApp us, and we would love to pray for you and get in touch with you. If you enjoyed today's service, why don't you hit that like button? Why don't you subscribe to our YouTube channel or share this video on Facebook? May God bless you. Have a wonderful week ahead.